देश प्रदेश प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत बहुत स्वागत है जी। 3 ਵੱਡੇ फैसले इंटरनेशनल राजनीतिक पद्धर ਦੇ ਉੱਪਰ और होर भी कुछ मुद्दे ने ਜਿਹੜੇ। ਪਹਿਲਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਓਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ 500 ਤੋਂ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਪਿਛਲੇ 4-5-6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਸੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੀਸ ਲਈ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਸ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਨਿਰਣਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ, ਡਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ US नहीं जा पाओगे। ये कितना सच है, कितनी को अफवाह है? देखिए ये टोटली अफवाह है। अगर आप ट्रम्प की बात करें, जब ये अपने कैंपेन कर रहा था, वोट जब मांग रहा था, तो इन्होंने टोटली अपने इंडियंस की काफ़ी थैंक्स किया है। और ये उसमें भी दिखाया, मोदी जी ने भी बोला कि भाई हाँ कि भाई आपने हमारे इंडियंस का थैंक्स किया है। कहीं ना कहीं इन्होंने इंडिया ने सपोर्ट्स किया है। ठीक है, हर एक कंट्री हर एक जो पार्टी है उसकी अपनी पॉलिसीज होती हैं। वो H1B1 के कहीं ना कहीं अगेंस्ट ये चीज़ें उठ के आई थी, बट इट डज़ नॉट मीन क्योंकि वीज़ा नहीं लगेंगे। टाइम टू टाइम सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। स्टूडेंट्स के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी फ्यूचर तो मुझे भी नहीं पता कि वो आगे क्या लेके जाएंगे, बट होप यही है कि भाई सब कुछ ठीक होगा, बढ़िया होगा। क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे जो इंडिया का एक रूप बनने वाला है वो बहुत अच्छा बनने वाला है। जो अभी जो डिसीजंस लिए गए हैं, जो मोदी ने लिए हैं ब्लैक मनी को ख़त्म करने के लिए, तो एक आने वाला टाइम जो बहुत अच्छा है हमारा। हम इकोनॉमिकली बहुत अच्छे, एक मैन पावर, एक बहुत बड़ी पावर के रूप में उभर के आने वाले हैं, जस्ट लाइक चाइना की तरह। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। जैसे अगर मैं चाइना की बात करूं, अभी मैं बीजिंग में था कुछ टाइम पहले, तो मतलब वो लोग मतलब काफी फाइनेंशियल साउंड है, और वो जब पढ़ने जाते हैं, वो पढ़ने जाते हैं मोस्टली बच्चा, तो वही एक टाइम हमारे पास भी आने वाला है। इंडिया में बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी जब होंगी, तो ये जो बच्चा हमारा जा रहा है वो काम के पीछे कम जाएगा, पढ़ाई के पीछे ज्यादा जाएगा। तो कहीं ना कहीं इंडिया का उस टाइम पे एक अपना नाम होगा, एक अपना स्टैंडर्ड होगा। तो बट टाइम लगेगा इन चीजों में, बट श्योर शॉट हमारा जो फ्यूचर है बहुत जबरदस्त होने वाला है। बहुत अच्छी ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੜਨ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਚਾਈਨਾ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਗਲਾ ਥੋੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ भाजी, मेरी आवाज आ रही है जी ਤੁਹਾਡੇ तक? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, सवाल पूछो जी। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछो जी। सर मेरे बेटे ने बीटेक की है 75% मार्क्स में जी, सिविल इंजीनियरिंग में। तो वो एमटेक करना चाहता है कनाडा में जाकर जी। तो वो चंडीगढ़ गया था एक वहां पर किसी से मिलने, तो उनसे उन्होंने बोला कि इसका खर्चा बहुत ज्यादा है यूनिवर्सिटी का। फिर पता करना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी का खर्चा कितना है 2 साल के प्रोग्राम का, और पेमेंट का अभी उन्होंने बोला कि पेमेंट आपको FD आप दिखानी पड़ेगी 6 महीने पुरानी। प्लस मैंने पूछा था उनसे कि क्या
हम FDR की जगह वो LIC की दिखा देते हैं पॉलिसी, वो मेरे पास बहुत ज्यादा है। प्रदीप जी तो उन्होंने मना कर दिया। जी जी अब सुनिए सर, एक तो मुझे पता करना है खर्चा कितना है इसका। बिल्कुल सर, सर तुसी लाइन पे बने रहो। और क्या आपका और क्या क्वेश्चन है जी इसके अलावा? दो ही क्वेश्चन है FDR दा 6 महीने दा। सर ये दो क्वेश्चन है ना, एक तो LIC का पैसा लग सकता है या मुझे FD ही करानी पड़ेगी? देखिए सर, या लोन लेना पड़ेगा? देखिए सर, पहला आपका है क्वेश्चन कि आपके बेटे ने बीटेक की है, वो एमटेक करना चाहते हैं। 6.5 बैंड, उसकी मैं एंट्री क्राइटेरिया बता रहा हूँ, 6.5 बैंड नो लेस देन 6 आपने कोई बेटे को लेने पड़ेंगे। और यूनिवर्सिटीज, मोस्टली यूनिवर्सिटी GRE मांगती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी विदाउट GRE भी दे सकती हैं, विद फाउंडेशन प्रोग्राम भी दे सकती हैं, फर्स्ट बात। सेकेंडली जो आपने एक्सपेंसेस की बोली, जो यूनिवर्सिटीज की फीस निकल के आती है पर ईयर की, वो 22 से 24 हजार डॉलर, तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए फीस निकल के आती है सालाना। तो जो कॉलेज की बात करें 8 लाख रुपए, तकरीबन 4 लाख रुपए सालाना आपको महंगी पड़ती है यूनिवर्सिटी। बट यूनिवर्सिटी की डिग्री भी मिल रही, कोई ज्यादा महंगी नहीं है। पर इनटेक बात करें तो सिर्फ 2 लाख रुपए ज्यादा पड़ रहा है। तो आपको 7 से 8 लाख रुपए आपकी फीस आएगी, सॉरी अपना 12 से 13 लाख रुपए आपकी फीस आएगी। उसमें 6 महीने की फीस तकरीबन 6.5-7 लाख रुपए आपने पे करना है। और $10,200 का GIC लेना है। कोई फंड दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई आपको FD दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई भी फंड नहीं दिखाना, ठीक है जी। आपके पास ये 13-14 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, जिसमें से आपने 6 महीने की फीस भेजनी है और इधर से $10,200 का GIC लेना है। फंड एम्बेसी में नहीं दिखाना है, मैं अगेन आपको बताना चाहूंगा। हाँ, ये एक अलग बात है कि आप वो पैसा आप LIC से भी ले सकते हैं, वो आपके पास कोई FD है उससे भी ले सकते हैं, आपके पास एजुकेशन लोन है, एजुकेशन लोन से भी पे कर सकते हैं। आपको कोई फंड दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं वही सुन के हैरान हूं ऐसे कि 6 महीने के थे सिस्टम आ गया। नहीं, पता नहीं वो किस कंसल्टेंट्स के पास गए हैं, क्या है क्या नहीं है। कनाडा में मैं आपको अगेन बताना चाहूंगा, 2 तरीके से फाइल लगती है। पहला प्रेफर्ड ऑप्शन है कि जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है कि 6 महीने की आप फीस पे कर दो और $10,200 का GIC ले लो, एक प्रेफर्ड ऑप्शन ही है। उसमें आपको कोई फंड दिखाने की जरूरत नहीं है, फीस कॉलेज को दे दी, $10,200 बच्चे को GIC लेना पड़ा। ICI बैंक में ट्रांसफर करने होंगे या अपना GIC उसमें क्या नाम है, नोवा स्कोशिया बैंक में, प्रेफर्ड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन वो ये बोलते हैं कि ऑफर लेटर आने के बाद आप 6 महीने की फीस पे कर दो और जो $10,000 जो लिविंग कॉस्ट उसकी है, उसका एजुकेशन लोन आप ले सकते हैं। तब भी आपको कोई FD, कोई फंड ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। 6-7 लाख का लोन दिखा दो और 6 महीने की फीस पे कर दो। बट फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सबसे अच्छा है कि 6 महीने की फीस पे करो, $10,200 तकरीबन 5,40,000 रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अगर वो नहीं कर सकते तो 6 महीने की फीस के साथ $10,000 तकरीबन 6 लाख रुपए का एजुकेशन लोन। कॉल कर ली, शुक्रिया जी। अगले कॉलर्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ ਐਂਡ US ਹੈਗਾ। 3 मैं दस के हटांगे। 3 दिनों के अहम फैसले हुए। ट्रंप उन्होंने जितना, नरेंद्र मोदी ने वालों 500 ते 1000 के नोट बंद करना, SYL का मुद्दे के उपर पंजाब नूं वड्डा झटका लगना, किते ना किते इमीग्रेशन इंडस्ट्री के नाल तीनों ही मुद्दे जुड़े हुए हैं टेढ़े विंगे ढंग के नाल। 500 ते 1000 के नोट के बंद होने नाल हाहाकार मची हुई है इस वक्त। जिन्हां स्टूडेंट्स दी एक्सपायरी डेट्स बहुत जल्दी ने, खासकर कैनेडा दे विच लंघ के हटी। हुण 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 तरीक तक जिन्हां दी लास्ट डेट्स ने। फीसां दे विच कोई समस्या आ रही है बच्चों नूं? डेफिनेटली इस टाइम समस्या है जी कि पहले क्या होता था, मोस्टली बच्चे जुगाड़ करते थे कि उन्होंने क्या नाम है अपना इधर से उठा लिया, उधर से उठा लिया और वो पैसा अकाउंट में डाल के ट्रांसफर कर देते थे। मीन्स लाइक वो सोर्स नहीं होता था। अब जैसे कि मोदी जी ने ऐलान किया उसके बाद तो मतलब एक तरह से धरती हिल गई है। समझ नहीं आ रहा कैसे स्टूडेंट्स करेंगे। हाँ, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जितना जल्दी कर सकते हो बेटर है। आप सोर्स के साथ पेमेंट डालो, जैसे भी आप पेमेंट डाल सकते हो अपनी फीस ट्रांसफर करो, क्योंकि आने वाले टाइम में आप किसी एजेंट को कैश नहीं दे सकते। आप करंट है, मैं ता पूछ रहा कि फॉर एग्जांपल बच्चे दी 12 तरीक लास्ट है, 14 तरीक लास्ट है, एक्सपायरी डेट है, बच्चे को पैसा है नहीं, नहीं है, कुछ नहीं हो सकता जी। आपको फीस ट्रांसफर करनी पड़ेगी तभी कुछ होगा। हाँ, मैं पूछ रहा कोई सहायता या कुछ कनाडा इस चीज को समझदा है, कोई फैसले नु? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एम्बेसी इसको कुछ नहीं समझेगी, कनाडा कुछ नहीं समझेगी। वो तो डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं कि आपने फीस पे करी, GIC पे किया, फाइल लगाओ, वीजा लग जाएगा। लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं है तो फिर कैसे हो जाएगा? तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये तो हमें खुद मेरे स्वर्ग मिलेगा, हमें खुद अपनी फीस ट्रांसफर करनी है, खुद अपना क्या नाम है GIC ट्रांसफर करना है, तभी होगा जी। और ये कोई बड़ी सिचुएशंस नहीं है, कुछ टाइम की सिचुएशन है, महीने 2 महीने, उसके बाद रात आई है तो दिन भी निकला है,
तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब पर फैसले का पूरे भारत वासियों को स्वागत करना चाहिए। मैं पोलीटिकली किसी भी पार्टी नाल सहमत नहीं हाँ। हर समय हर साल हर कैंडीडेट प्रति साडा नज़रिया बदलता, मेरा भी बदलता, तुहाडे वांगू बतौर पत्रकार अपनी अपनी वोट वखरे वखरे एंगल तो पाउण दी कोशिश करते हैं। पर यह फैसला एक अहम फैसला साबित हो सकता है जे सही कदम मंजिल वाल बढ़नगे। अगले कॉलर ने मैं जस्ट बोलना चाहूंगा, इसमें मोदी जी की बड़ी जबरदस्त प्रेज करनी चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए। जितना ब्लैक मनी इंडिया में आ चुका है और कहीं ना कहीं नुकसान हम लोकल जो अपने जो आम सिविलियन पर्सन है जिन पे ही प्रॉब्लम आ रही है इस चीज को। और मेरे ख्याल से एक ईमानदार पर्सन और जो कुछ करना चाहता है वही ये डिसीजन ले सकता है। पिछले 50-60 साल में आज तक कोई नहीं, विल पावर चाहिए जी, विल पावर चाहिए जो ये मोदी जी ने कर दिखाया है। सो ਵੱਡਾ फैसला राजनीतिक पार्टियां ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ 4 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਲਰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। हेलो, ਹਾਂਜੀ सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ रिजाइना में अप्लाई किया था एमएससी मैथमेटिक्स के लिए। जी 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 यूनिवर्सिटी ऑफ रिजाइना तो स्केच 1 में। सर एक्सेप्टेंस लेटर तो आ गई है वहां से, बट वो उसमें जो फीस स्ट्रक्चर आ रहा है वो $7,000 आ रहा है 1 ईयर का। और उन्होंने ये बोला है कि आपको पेमेंट जो यूनिवर्सिटी की फीस है वो पहले सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है, वहां पे पहुंचने के बाद करवाना है आफ्टर वीजा। ठीक है, बट मैं तो आपका क्वेश्चन ये है कि आपको पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, उन्होंने तो 2 क्वेश्चन है। एक तो कहते भी 7,000 ते हैरानी है कि 7,000 फीस। नहीं, इसमें हैरान होने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। $7,000 हो सकती है क्योंकि यूनिवर्सिटी है, वो कुछ भी दे सकती है और मे भी स्कॉलरशिप मिले, मे भी उसकी फीस बहुत कम हो। मतलब ये कोई बड़ी हैरान वाली करने वाली बात नहीं। ऑफर लेटर पे जो मेंशन है वो मेंशन है। अगला क्या क्वेश्चन है बेटा आपका? सर वो एक फीस वहां जाके सबमिट करवानी है, तो यहाँ पे वीजा में प्रॉब्लम आएगी? डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी। मेरी तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर अब यूनिवर्सिटी की आप चेकलिस्ट को उठाओगे, आपने देखो कॉलेज ने जो यूनिवर्सिटी ने जो बोला वो बोला, ठीक है, हाँ, समझ रहे हो मुझे, लेकिन आपको एम्बेसी की चेकलिस्ट के हिसाब से आगे चलना पड़ेगा। अब एम्बेसी की चेकलिस्ट में यहाँ 3 टाइप की चेकलिस्ट निकलती है, एक यूनिवर्सिटी चेकलिस्ट, एक एसपीपी चेकलिस्ट, एक जेनेरिक चेकलिस्ट। आपको यूनिवर्सिटी चेकलिस्ट को निकालना है। आप वीएफएस की साइट्स पे जाइए या इमिग्रेशन की साइट्स पे जाइए, www.cic.gc.ca, इस पे जाओगे तो आपको यूनिवर्सिटी की चेकलिस्ट मिलेगी, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें स्पेशली मेंशन है कि भी आपको 6 मंथ की फी पे करनी है, फर्स्ट सेम की फी पे करनी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप फर्स्ट सेम की फीस पे कर दो ताकि आपको फिर रिसिप्ट आ जाए। फिर रिसिप्ट आपको फाइल में लगानी पड़ेगी, उसके बगैर आपकी फाइल प्रोसीड नहीं हो सकती। सेकेंडली, आपको $10,200 का चाहिए जीआईसी ले लो, या $10,000 का आप एजुकेशन लोन ले लो, वो भी आपको फाइल में लगाना पड़ेगा, तभी आपका वीजा आएगा। बेटा तुसी यूनिवर्सिटी नाल कांटेक्ट कीता जे लाइन ते बने हुए? मेरा सवाल है। हाँ जी सर। नहीं ये पूछा कि ये जेडी लेटर हैगी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर जो एक्सेप्टेंस लेटर थी ना उसमें कुछ भी फीस वगैरह मेंशन नहीं थी, तो नहीं, मेरा जेड़ा सवाल है कि अपनी यूनिवर्सिटी ਨੂੰ बाय मेल या बाय फोन पूछ लो कि जी आ मैनू लेटर आया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, मैं पूछ नहीं, आपने ये जो ऑफर लेटर है किसी कंसल्टेंट ने आपको दिया है या आपने डायरेक्टली अप्लाई किया था? खुद किया था, खुद फिर तो फिर वो ठीक है। और रणवीर जी ये लड़की ठीक है यहाँ पे, क्योंकि ठीक है। पिछले 1 साल पहले मेरे भी 2-3 स्टूडेंट्स के साथ ये चीजें आई थी। हम भी बड़े सरप्राइज थे कि ये हो क्या रहा है। हमने स्टूडेंट्स की फी पे करवाई, रिजाइने की बात हो, यूनिवर्सिटी रिजाइने की बात हो रही, हमने फी पे करवाई और उसका 10 दिन के अंदर उसका वीजा आ गया था। बेटा आप फी पे करो और रिसिप्ट मांगो अपनी यूनिवर्सिटी से और फाइल लगाओ। जे खुद तुसी अप्लाई किया तो शुक्र है, मेरा ख्याल अच्छा ही ठीक होगा। मैं इस करके पूछा कि अज वीरवार है, कल दी गल है, बुधवार शाम ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਾਈਏ, 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਦਰਤਨ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਗਾ, ਉਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਸੇਵ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਫੇਕ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਕ ਆਫਰ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਸੇ ਬਿਲੋਂਗ करते बेटा? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ 35C में मेरा ऑफिस है, निक बेकर के ऊपर। आप एक बार आके मिल लीजिए, आपकी जितनी हेल्प हो पाएगी मैं जरूर करूंगा। ठीक है सर। वैसे यूनिवर्सिटी अच्छी है, मतलब इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। ठीक है बेटा। हाँ, मैं कल मैं जलंधर हूँ, सैटरडे को मैं चंडीगढ़ ऑफिस में हूँगा।
ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੁਝ सिचुएशंस हालात उसी तरह ने नहीं। कल परसों की बात है, परसों मेरा 5.5 बैंड पे वीज़ा आया है। इसमें क्या नाम है अपना डिप्लोमा प्रोग्राम। तो डिपेंड करता है कि आपके पास किस टाइप की प्रोफाइल है। 5.5 बैंड पे हिमाचल बोर्ड विदाउट इंटरव्यू बच्चे का वीज़ा आया है। तो समझने वाली बात है कि आज की डेट में अगर बच्चा सीबीएसई से अपने क्या नाम है पंजाब बोर्ड से है, उसकी परसेंटेज अच्छी है तो गो हेड आपका वीजा आ जाएगा। लेकिन हरियाणा और हिमाचल और सीबीएसई बोर्ड के विदाउट इंटरव्यू भी एम्बेसी वीजा दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं फंडिंग आपके पास ठीक हो, रिसर्च आपके पास ठीक हो, आपकी जो फाइल पुट हो रही है, ऑनलाइन जो फाइल पुट हो रही है वो करेक्ट वे में पुट हो रही हो, वीजा आपको मिलेगा। गुड न्यूज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। वीजा आ रहे हैं, वो चाहे हरियाणा बोर्ड है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, चाहे हिमाचल बोर्ड है या आपका पंजाब बोर्ड भी है। लेकिन एक राइट कंसल्टेंट, राइट कोर्स और आपके पास फंडिंग ठीक ठाक होनी चाहिए और आपके रिसर्च अच्छे होने चाहिए, यू विल गेट द वीजा। प्रदीप जी, शो तो बाद बहुत सारे बच्चे कहते हैं जी असी गल करनी है तुहाडे तो तुसीं चले जाते हो लाइव तो बाद मेरे फोनां दे फोन बजने शुरू हो जाते हैं या इधरों उधरों नंबर चढ़दी कला दे लैके चढ़दी कला दे बजने शुरू हो जाते हैं। मैं चाहूँगा एक बार थोड़ा जिहा दर्शकों नूं दसो कि कल दा शेड्यूल, परसों दा शेड्यूल की है तुहाडा, कित्थे कित्थे मिलदे हो? देखिए सर, कल आप मेरे से जलंधर मिल सकते हैं। एजीआई बिजनेस सेंटर में मेरा ऑफिस है, फर्स्ट फ्लोर पे अपना नरेंद्र सिनेमा है उसकी बैक साइड में। इसके अलावा सैटरडे को मैं चंडीगढ़ अवेलेबल हूँ, सेक्टर 35C में निक बेकर रेस्टोरेंट के ऊपर मेरा ऑफिस है, SU 441-442। ये मेरा कल का शेड्यूल जलंधर का है, परसों आपका चंडीगढ़ का है। मंडे को अगेन मैं चंडीगढ़ होऊंगा, वही सेक्टर 35C में। और ट्यूसडे को मैं करना अपने अम्बाला ऑफिस में होऊंगा, अम्बाला सिटी में विकास विहार में ऑफिस है। तो ये 4 दिन का शेड्यूल मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ। परमानेंट ये मोस्टली परमानेंट है। एक चीज और आपको समझनी होगी, मेरी एक फेसबुक पेज है जो इस पे चल भी रहा है, वेस्टर्न ओवरसीज 172 के नाम से मेरा पेज है। प्लीज आप इसको लाइक करो, जो क्वेश्चन है आप पूछिए। और एक नंबर जो चल रहा है 9115017017, इस नंबर पे आप कल बात कर सकते हैं। अगर आज आपकी बात नहीं हो पा रही है तो कल आप इस नंबर पे भी बात कर सकते हैं। प्रदीप जी कॉलर ने जी स्वागत है। सत श्री अकाल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, की सवाल है? सर मैंने +2 किया है सर 2013 में और 10th किया है मैंने 2010 में। कित्थों बोल रहे हो तुसी? सर मैं हिसार हरियाणा से बोल रहा हूँ। जी जी, बोलिए बोलिए। सर मैंने 10th किया 2010 में हरियाणा बोर्ड से। उसके बाद मैंने +2 किया है 2013 में NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से। क्योंकि एक साल में मेरा सर एक एग्जाम रह गया था, इसलिए 2013 में हुआ है वो मेरा, इसलिए गैप एक साल का +2 और 10th के बिटवीन जी। तो सर उसके बाद मैंने आइल्स किया जिसमें मेरे 6 बैंड आए जी। ओवरऑल सवाल की है तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा बजट नियर अबाउट 3 से 3.5 लाख, 3.5 से 4 लाख है सर। मैं किस कंट्री के लिए? प्रदीप जी देखिए जी, 3.5 से 4 लाख आपका बजट है। कनाडा नहीं जा सकते, यूएस आप नहीं जा सकते, ऑस्ट्रेलिया आप नहीं जा सकते, न्यूजीलैंड ठीक है, न्यूजीलैंड आप नहीं जा सकते, सिंगापुर आप जा सकते हो, साइप्रस आप जा सकते हो, बजट में ये चीजें कुछ ऑप्शन है। इसके अलावा यूरोप के आपके पास ऑप्शन है। यूरोप में आपके पास लातविया है, लिथुनिया है, पोलैंड है और एक आपका क्या नाम है पुर्तगाल है। ये जो कंट्रीज हैं ये आपके इस बजट में आते हैं। तकरीबन 3.5 में 3.5 नहीं कहूँगा, 4 लग जाएंगे ज्यादा। आप जा सकते हो इन कंट्रीज। बहुत अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने। मैं अच्छा इस करके कह रहे हैं कि बहुत लोग ऐसे बैठे ने ਜਿਹੜੇ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਟਵੀਆ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਜਾਈਏ, पोलैंड जाइए, सिंगापुर जाइए, साइप्रस जाइए। अज तुसीं बहुत अच्छे मौके ते उन्होंने सवाल पूछ लिया, तुसीं भी लाइव बैठे हो। किमें कंट्री की सिलेक्शन की जाए ना, पंजाब दे विचों, यूरोप दे विचों या बाकी दे जेडे? देखो जी, प्रोफाइल की बात होती है। जैसे इस बच्चे ने 6 बैंड ले रखे हैं, ये पोलैंड भी जा सकता है, ये फ्रांस भी जा सकता है, ये जर्मन भी जा सकता है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज इंटरव्यू लेती है। 6 बैंड है, बच्चा कैपेबल है। लिथुनिया भी जा सकता है, तो इन कंट्रीज में ये जा सकता है। और क्या नाम है, स्टडी कंप्लीट करने के बाद ये किसी न किसी कंट्री में वर्क वीजा भी ले सकता है और पेपर खुले तो पक्का भी हो सकता है। अदरवाइज आप साइप्रस भी जा सकते हो। साइप्रस यूरोपियन यूनियन में है, विदाउट इंटरव्यू वीजा है, कोई रिस्क नहीं है। वीजा अपना आपका आ जाएगा। आज वो यूरोपियन यूनियन में, कल वो सेनेगन भी हो जाएगा। बट बच्चे की नीयत पढ़ने की होनी चाहिए। इसके अलावा 3.5 के बजट में आप सिंगापुर भी जा सकते हो। सिंगापुर में 2 साल की अगर आप एडवांस डिप्लोमा कर लेते हो, इसके बाद तो आप यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया भी माइग्रेट हो सकते हो। तो हर एक कंट्रीज की अपनी वैरायटी है, हर एक कंट्रीज के अपने
पॉजिटिव आउटकम्स हैं। तो बस बशर्ते कि स्टूडेंट को समझना होगा ये चीज़। जी दर्शकों ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਚੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ, USA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਈਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਲਿਆਣ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ 2 ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ लेना डेफिनेटली फाइल लगा सकता है। देखना ये होगा रीज़न क्या थे, मे बी इंटरव्यू हो, मे बी फंडिंग को लेके हो गया, फंडिंग पुरानी नहीं है, मे बी वो ग्रामीण बैंक में हो। और अगर करैक्टर पे नहीं है तो आप अपनी फाइल लगा सकते हो। जो पीछे कमियां रही हैं उसको दूर करके SOP अच्छे तरीके से पूरे रिसर्च करके सारे एविडेंस देके आप फाइल लगाओगे, वीज़ा के चांसेस हैं। और आज की डेट में न्यूजीलैंड लीनियंट होता जा रहा है, वीज़ा आ रहे हैं। अभी एक मेरे को कॉलेज का भी फ़ोन आया था कि जी हमारी काफ़ी AIP आई है, आप प्लीज़ फाइलें स्टार्ट करो। और हमारे भी कुछ बच्चों के वीज़ा अभी रिसेंटली निकले हैं। तो पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका पहले रिफ्यूज़ल है, अगर रिफ्यूज़ल्स अपना आपके करैक्टर के कारण नहीं है, फेक फंड्स के कारण, फेक डॉक्यूमेंट्स के कारण नहीं है, तो आप अपनी फ़ाइल लगा सकते हो। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने जो पुरानी फाइल लगाई थी एक उसकी अगर फोटोकॉपी मिल जाए, क्योंकि हर एक कंसल्टेंट फोटोकॉपी रखता है, तो यू हैव द राइट, आप उनसे पूछ सकते हैं कि यार आपने मेरी फाइल लगाई थी, SOP प्लस में डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने क्या लगाए हैं, किस टाइप के बिजनेस प्रोफेशंस दिखाया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखानी होती हैं। और फॉर्म में उन्होंने क्या फिल किया है, तो ये सारी चीज़ देखनी होती है कि ताकि वो जो पुराना ट्रैक है उसके हिसाब से आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल ठीक है गल तुहाडी। कॉलर साडे नाल लाइन ते जी, स्वागत तुहाडा। हेलो, हाँ जी स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सर मैं गुरदासपुर तो बोल रहा अरविंद सिंह। मैं बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की जी। हाँ जी। और मेरी जी परसेंटेज है 58% है और मेरी एक्सटेंडेड है जी, मतलब 6 महीने ऊपर लगे ने। 7 बैकलॉग ने, सप्लीज होने, ओवरऑल बैंड, हाँ जी ओवरऑल बैंड ने 6.5, नॉट लेस देन 6। हुन सब पूछना सी मेरी कनाडा की फाइल लग जाएगी। हुन ਤੁਹਾਡੀਆਂ सप्लीज क्लियर ने सारियां? हाँ जी A to Z क्लियर ने। ओके हो जाएगा सर। आप कॉन्स्टेबल का कॉलेज है वो लीजिए, आपका क्या नाम है, एक फेंसुई कॉलेज है ये लीजिए। सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इनके पास PG प्रोग्राम्स है, आपका आ जाएगा। 7 बैकलॉग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 58% है, गो अहेड, आपका वीजा आएगा। जैन इनटेक आपका निकल चुका है, मई इनटेक या सितंबर इनटेक आपके पास है। कुछ और सवाल जी? सर मेरे को 2 साल का कोर्स नहीं मिल सकता? सर देखिए, आप यहाँ से 1 साल का मिलता है तो 1 साल का लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल की स्टडी कंप्लीट करने के बाद 1 साल और वहाँ पे एक्सटेंड करा लेना, आपको 2 साल की स्टडी हो जाएगी। उसके बाद 3 ईयर का वर्क वीजा आपको मिल जाएगा। जो आपको यहाँ से ऑप्शंस मिल रहे हैं आप ले लो, चुपचाप ले लो, निकल जाओ प्लीज। बहुत सोहना सवाल उन्होंने उठाया। ये बहुत बच्चों का सवाल होता अक्सर जी कि जो 2 साल का नहीं मिलता 1 साल लेके चले जाइए। जी देखिए, मोस्टली जो कॉलेजेस हैं वो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, PG डिप्लोमा मोस्टली 1 ईयर के रन करते हैं। और अगर हम ओंटारियो की बात करें, ब्रिटिश कोलंबिया की बात करें, अल्बर्टा की बात करें, यहाँ पे 2 ईयर बच्चे को पढ़ना होता है, उसके बाद 3 ईयर का वर्क वीजा मिलता है। तो स्टूडेंट्स को हम यही सजेस्ट करते हैं कि जो कोर्स अवेलेबल है ये ले लो। इसके बाद 1 साल कंप्लीट होने के बाद सेम फील्ड में कोई और कॉलेज दे रहा हो तो उसमें आप अपना वीजा ले लो, नहीं तो इसी में आप बिजनेस से रिलेटेड PG डिप्लोमा कर लो 1 ईयर का, और 2 साल की स्टडी हो जाएगी। 2 साल के बाद 3 साल का वर्क वीजा होगा। अब बच्चे के पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं कि एक तो जो उसने अपना इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो कोर्स किया उसमें भी जॉब कर सकता है, और बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड फील्ड में भी जॉब कर सकता है। 2 ऑप्शन निकलते हैं, कहीं ना कहीं वो बच्चों के लिए पॉजिटिव। प्रदीप जी, अज के प्रोग्राम लिए कुछ खास, क्योंकि लाइव्स बच्चों ने सवाल पूछे, उन्होंने भी अपने वालों पूछे, मैं भी अपने वालों कोशिश की थी, तुहाडे वालों कुछ खास? सर देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अभी जो सोशल में एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो अभी चल रहा है इसमें आपने गवर्नमेंट को बड़ा सपोर्ट करना है, और अपने आप को भी नहीं भूलना है। आपने बाहर जाना है, अपनी फीस का कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे जुगाड़ करो, और जैसे जैसे आप अपनी फाइल पुट करोगे उतना जल्दी आपका वीज़ा आएगा, क्योंकि आपका जो कनाडा इनटेक है वो बहुत नियर है। अगर ये निकलता है तो फिर आपका मई इनटेक की बात, और मई इनटेक इतना बड़ा, इतना पॉपुलर नहीं है। सितंबर इनटेक सबसे ज़्यादा होता है। कई स्टूडेंट्स तो ऐसे बैठे होंगे जिसका जैन के बाद सीधा सितंबर इनटेक उनका निकलता है। तो कहीं ना कहीं अपनी फीस कैसे न कैसे आप अपना प्लीज़, मे बी आप कैश जमा नहीं करा सकते तो आपके जो नियरेस्ट, आपके जो क्लोज रिलेटिव बैठे हैं उनसे आप ट्रांसफ़र करवा लीजिए, बाद में आप उनके सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन आप प्लीज़ अपनी फ़ीस जल्दी से जल्दी, अपनी GIC जल्दी से जल्दी पे करो ताकि आपकी फाइल लगे। ये मैनेज करना पेगा हुण बच्चों नूं, और स्पैशली जिहड़ा प्रदीप जी ने सद्दा दिता, मैं भी इहदे नाल सपोर्ट करदा कि जो इस उम्मीद नाल, जिस सुपने नाल, जिन्हां सहूलतां नूं, जिन्हां नज़ारिਆਂ ਦਾ आनंद माणन वास्ते असीं विदेशां दे विच जाने आ,
ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਚਮਿਚਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਆਮੀਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸ਼ੋ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਾਲਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।